Hello, dear children. A very hearty good morning to one and all. I say good morning every day. It may be that you watch this video sometime in the afternoon or in the evening or maybe at night also. But I presume that you all see the video in the morning. So I wish all of you a very good morning. Okay? Since I interact with you through this video only, मेरा आपसे interaction video के through ही होता है. So that is why I wish you all a very hearty good morning every day. I consider कि आप लोग ये morning में ही शायद देखते होंगे, इसीलिए मैं सबको good morning बोलती हूँ. Okay? So I hope we all are good, and I'm sure we all are good. We all are happy and safe. Children, be happy, stay healthy, stay safe. So let us start the class now. I hope you all are in a good and in a happy mood. आप सब cheerful mood में हो, तो हम class start करते हैं. We are doing chapter number 5, which is shapes and patterns. We are doing chapter number 5. This chapter is shapes and P-A-T-T-E-R-N-S, patterns. Okay? Shapes, as I told you, I explained about 5 basic shapes that are square, triangle. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, we have discussed about square. I told you about triangle. Then I explained about rectangle. Then I explained about oval, and I explained about circle. Okay? These are the basic shapes, and they are known as two-dimensional shapes because they have only length and breadth. And if we place them on any plane surface, ये जो plane shapes होते हैं, इनको आप पेपर पे भी कट कर सकते हो. जैसे मैंने कट किया है, मैंने पेपर पे ही कट किया है. I made the shape. You can use any circular thing to make circle. Square, rectangle के triangle के लिए scale use किया. For making this, I use the जो स्टील के डब्बे होते हैं जैसे मम्मी यूज करती हैं, उसका एक ढक्कन लेके मैंने ये शेप बना लिया. You can use any circular thing. ग्लास ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो. So just make a circular shape, color it and cut it, or you can cut it and then color it. तो ये प्लेन शेप्स को जब आप किसी भी प्लेन सरफेस पे प्लेस करोगे, मतलब किसी एकदम प्लेन सरफेस, जैसे ये भी बोर्ड का सरफेस है, जैसे जमीन होती है, आपके टेबल का सरफेस है, तो कहीं पे भी अगर आप ऐसे करके इसको प्लेस करोगे तो दिस शेप विल कंप्लीटली टच द सरफेस. आप जिस भी चीज के ऊपर इसको रखोगे उसको ये जो शेप है वो पूरी तरह टच करेगा. Why? Because it does not have height. इसके पास हाइट नहीं है. ठीक है? Only like circle and oval में तो just one circle and oval. Only one side is there. ठीक है? देखो इससे हमको ड्राइंग भी बना सकते हैं. ऐसे करके एक फेस, उसके ऊपर एक कैप. Isn't it? शेप्स की ड्राइंग बना सकते हैं. Now, rectangle, triangle and square. These have 3 sides and 4 sides. अभी जैसे square है and rectangle है, इसमें length is there, breadth is there. But in circle and oval, only one side is there. इन किसी भी shape में height नहीं है. ठीक है? इसीलिए that is why they are known as two-dimensional plane shapes. इसके बाद हमने क्या किया था? Then we did coloring of figures.
मतलब शेप यूज करके ड्राइंग्स बनाना, तो वो मैंने बताया आपको। यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन एंड मेक एनी ड्राइंग यूजिंग शेप्स। आप शेप्स को यूज करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हो अपने इमेजिनेशन से। ड्राइंग में तो कोई कंपल्शन होता नहीं है कि फ्लावर बनाना है तो ऐसा ही फ्लावर बनाना है। आप अपने इमेजिनेशन से, अपनी मर्जी से कैसे भी ड्राइंग बना सकते हो, कैसा भी कुछ भी बना सकते हो। So using these shapes you can make any drawing. कल मैंने आपको in my previous video मैंने 2-3 drawings बना के दिखाई। I made a clown, I made a scenery, I made the face of a mouse. In this manner you can make any drawing. Then we were doing patterns in shapes. ठीक है, पैटर्न का मतलब जैसे मैंने बताया था डिजाइन। पैटर्न इज डिजाइन। पैटर्न भी आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, सो हियर वी आर मेकिंग पैटर्न यूजिंग शेप्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज। ओके, नाउ आई विल नॉट डू दीज। मैं बोर्ड पे जो एक्सप्लेन करूंगी वो मैं बुक वाले पैटर्न्स नहीं लूंगी। ठीक है, आई विल टेक डिफरेंट पैटर्न्स। इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको समझ में आ जाता है कि पैटर्न कैसे बनता है, तो यू कैन मेक योर ओन पैटर्न। आप कोई भी पैटर्न अपने से बना सकते हो। यू कैन वेरी इजीली कंप्लीट दिस वन ऑल्सो। ठीक है, सो आई विल नॉट टेक दिस वन, आई विल टेक डिफरेंट पैटर्न्स। फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। नाउ सपोज I take the pattern समझ में आ रहा है कि बेटे ये क्या पैटर्न चल रहा है। What is the pattern? The pattern is एक ट्रायंगल का पॉइंट ऊपर है, फिर और उसका बेस नीचे है। इसका जो फ्लैट वाला साइड है वो नीचे है और जो पॉइंट वाला साइड है वो ऊपर है। उसके बाद जो ट्रायंगल है उसमें पॉइंट वाला साइड नीचे है और प्लेन वाला साइड ऊपर है। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में पॉइंट ऊपर है, फ्लैट नीचे है। नेक्स्ट में पॉइंट नीचे है, फ्लैट ऊपर है। फिर पॉइंट ऊपर, फ्लैट नीचे। तो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट। मतलब एक ट्रायंगल सीधा है, एक ट्रायंगल यू कैन से इट इज लाइक दिस। कैसे रखा मैंने, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे रखा, पॉइंट इसका ऊपर है, बेस नीचे। नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने ऐसे कर दिया, पॉइंट नीचे, बेस ऊपर। फिर थर्ड ट्रायंगल मैंने ऐसे रखा, पॉइंट ऊपर है, बेस नीचे। फिर फोर्थ ट्रायंगल मैंने ऐसे रख दिया, मतलब बेस ऊपर, पॉइंट नीचे। देन अगेन पॉइंट ऊपर है, बेस नीचे। तो इसके बाद का ट्रायंगल कैसा होगा, एक एक छोड़ के। तो इसके बाद का ट्रायंगल में क्या होगा, इसका बेस ऊपर होगा, पॉइंट नीचे होगा, है ना। फिर क्या होगा, पॉइंट ऊपर होगा, बेस नीचे होगा। एंड नेक्स्ट वाला इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब एक एक छोड़ करके 1 3 5 7 9 देखोगे आप कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक एक ट्रायंगल छोड़ करके जो ट्रायंगल है उनका पॉइंट जो है दैट इज ऊपर में है। ठीक है, और सेकेंड ऑनवर्ड, सेकेंड ट्रायंगल से स्टार्ट करके पॉइंट जो है वो नीचे है। सो दिस इज अ पैटर्न। अभी एक मैंने पैटर्न लिया, ये एक स्क्वायर है। ओके, एंड देयर इज अ सर्कल इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, ये है सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, देन स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, स्क्वायर। नाउ कंप्लीट द सीरीज। अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें फर्स्ट मैंने क्या किया,
एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, उसके अंदर सर्कल, यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर अंदर है। तो ये मैंने क्या किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, नेक्स्ट मैंने उलट दिया, मतलब जो शेप बाहर था वो शेप मैंने अंदर कर दिया और जो शेप अंदर था वो मैंने बाहर कर दिया। इसके बाद फिर अगेन आई डिड द सेम थिंग, जो शेप अंदर था उसको मैंने बाहर कर दिया और जो शेप बाहर था उसको मैंने अंदर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यही काम किया, जो शेप बाहर था अंदर था उसको बाहर कर दिया और जो बाहर था इसको अंदर कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करूंगी मैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यही करेंगे कि जो शेप अंदर है उसको हम बाहर कर देंगे और जो शेप बाहर है दैट इज सर्कल, उसको हम अंदर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो शेप अंदर है उसको हम बाहर कर देंगे और जो बाहर है शेप उसको अंदर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो शेप अंदर है उसको बाहर कर दिया और बाहर शेप है सर्कल, उसको अंदर कर दिया। नेक्स्ट, सो इन दिस मैनर योर पैटर्न विल कंटिन्यू, आपका पैटर्न ऐसे चलता जाएगा, कंटिन्यू करता जाएगा। इसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। सो इन दिस मैनर यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ शेप्स। ओके, जैसे मैंने एक ये एरो बनाया, ये एरो कहाँ है, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। नेक्स्ट एरो कहाँ है, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। फिर नेक्स्ट एरो जो है वो अपवर्ड है, उसके बाद का एरो डाउनवर्ड है। अभी नेक्स्ट 4 एरोज हमें बनाने हैं, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, तो ये फिर अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया एंड ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप जो है, आप पैटर्न कुछ भी बना सकते हो। अभी लेट अस मेक वन मोर। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, 1। ओके, नाउ कंप्लीट दिस। अभी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 सर्कल, देन 2 सर्कल, देन 3 सर्कल्स, then 4 circles. That means what is happening? क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, हर एक स्टेप में एक एक सर्कल इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, so this is how we can make patterns on our own। हम अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसे ही पैटर्न होना चाहिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन मेक योर ओन पैटर्न, यू कैन टेक एनी शेप, कोई भी आप शेप ले सकते हो, कोई भी शेप लेकर के। वैसे पैटर्न्स नंबर से भी बनता है, पैटर्न is made using alphabets, pattern is made using numbers, pattern is made using alphabets and numbers both। यहाँ पे हम shapes को लेकर के पैटर्न बना रहे हैं। ओके, so that is why I am using only shape। so you can use any shape, आप कोई भी शेप यूज करके कैसा भी पैटर्न बना सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, पैटर्न्स इन शेप। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है ना, अभी सपोज मैंने एक लीफ लिया, लीफ भी तो एक शेप है, इट्स लाइक ओवल। तो मैंने लीफ का एक शेप लिया, मैंने एक अभी इसमें बताओ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ओनली वन लीफ इज देयर. फिर मैंने कितनी लीफ बनाई, 2. देन हाउ मेनी लीव्स, ओनली 1. देन अगेन 2. दैट मीन्स एक एक लीफ छोड़ करके 1 1 1 एंड 2 2 2. सो 1 2 1 2. तो यहाँ पे फिर कितने लीव्स होंगे, इट वुड बी 1 लीफ, देन 2 लीव्स एंड देन 1 लीफ. ओके, सो ऐसे आप अपना कोई भी शेप से पैटर्न बना सकते हो. पैटर्न मीन्स डिजाइन. ओके, सो लेट अस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. वी विल प्रोसीड नाउ टुडे. इसके बाद अभी हम करेंगे सॉलिड शेप्स. ठीक है, वी विल डू सॉलिड शेप्स नाउ. अभी इसके पहले जो हमने किया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ओवल, they were plain shapes. Today we will do solid shapes. Okay, solid shapes. Solid shapes are known as three-dimensional shapes. जैसे प्लेन शेप आपने पढ़ा, these are all two-dimensional shapes. ये हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल, दे आर two-dimensional shapes. मतलब इनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है. जो थ्री-डायमेंशनल शेप्स होते हैं, जिनको सॉलिड शेप भी हम कहते हैं, दे हैव 3 dimensions. थर्ड डायमेंशन क्या है, लेंथ इज देयर, ब्रेड्थ इज देयर एंड द थर्ड डायमेंशन इज हाइट. उनकी हाइट भी होती है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स. ठीक है, कलेक्ट सम सॉलिड्स फ्रॉम योर नेबरहुड विच आर सिमिलर टू द फॉलोइंग. अभी आप देखोगे सॉलिड शेप. सॉलिड शेप जो होगा उसका हर साइड जैसे इधर स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या सर्कुलर होगा. ओके, नाउ लेट अस सी. First shape is cuboid. This is first solid shape is C-U-B-O-I-D. Cuboid. Now cuboid में आप देखोगे, this is cuboid. इसका जो सबसे ऊपर का आपको बेस दिख रहा है, एक जो साइड दिख रहा है, वो क्या शेप है, उसका शेप है रेक्टेंगल. ठीक है, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड के सारे जो साइड्स होंगे दे आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. जैसे अ वेरी गुड एग्जांपल इज अ मैच बॉक्स. जैसे दिस इज अ मैच बॉक्स. ठीक है, ये मैच बॉक्स है. इसका ये साइड आपको दिख रहा है, दिस इज क्यूबॉइड. यू कैन सी द साइड, दिस इज अ क्यूबॉइड. अभी इसका आप देखोगे कि मैच बॉक्स का जो हर एक साइड है, ईच साइड इज ऑफ रेक्टेंगल शेप. 1 ये साइड है, फिर इसके पीछे का एक साइड है 2, देन दिस साइड 3, देन इसके ऑपोजिट साइड 4, देन दिस साइड 5 एंड दिस साइड 6. सो इफ यू होल्ड इट लाइक दिस, आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो देखोगे इसमें 3 डायमेंशंस है. लेंथ, ओके, 1 इज लेंथ, इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, एंड थर्ड डायमेंशन इज द हाइट. ठीक है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई. इसको अगर आप ऐसे करके किसी प्लेन सरफेस पे रखोगे सॉलिड शेप्स को, तो ये पूरी तरह तो इस पे नहीं पेस्ट हो पा रहा है बिकॉज इसकी हाइट भी है. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज क्यूबॉइड्स. जो आपकी बुक होती है, बुक जिससे आप पढ़ते हो, दिस इज अ क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है. इसमें आप देखोगे कि ईच साइड इज रेक्टेंगुलर इन शेप. ये आपका 1 साइड है, तो इसके ऑपोजिट एक साइड है, बोथ आर रेक्टेंगल. फिर ये एक साइड है, ठीक है ना, ये एक साइड है. दिस इज द लेंथ ऑफ द बुक. ये जो है आपकी, दिस इज द विड्थ ऑफ द बुक, एंड ये जो है दिस इज द हाइट. ये जो दिख रही है, दिस इज द हाइट.
Okay, so this is again a cuboid. So in a cuboid there are 6 sides, 6 sides होती हैं, and opposite sides are of rectangle shape. ठीक है, cuboid में जो opposite sides है वो rectangle shape की होती हैं. आपकी बुक है, your book, your notebook, your geometry box, pencil box, जितनी भी मैक्सिमम थिंग्स, दीज आर ऑल क्यूबॉइड. जैसे जो आप यूज करते हो, टिफिन बॉक्स, इफ इट इज रेक्टेंगुलर शेप देन इट इज अ क्यूबॉइड. टिफिन बॉक्स बहुत सारे बच्चों का राउंड भी होता है, बट योर बुक, योर नोटबुक, योर पेंसिल बॉक्स, ऑल दीज आर क्यूबॉइड. जैसे ये मैंने ये मैच बॉक्स दिखाया. ठीक है, सो दिस इज अ क्यूबॉइड. सो देयरफॉर इन अ क्यूबॉइड देयर आर 6 साइड्स. क्यूबॉइड में 6 साइड्स होती हैं, एंड ईच साइड, हर एक साइड का जो शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल होता है, जैसे ये रेक्टेंगल होता है ना, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम साइज. रेक्टेंगल में क्या है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है. तो आप ऐसे ही क्यूबॉइड में भी देखोगे कि जो ऑपोजिट साइड्स है इनकी लेंथ, जैसे ये साइड है तो इसके जो बैक वाली साइड है वो दोनों सेम साइज है. ये साइड है, इसके बैक वाली साइड बोथ आर सेम. दिस साइड एंड इसके बैक वाला साइड बोथ आर सेम. सो दिस इज क्यूबॉइड. ओके, नेक्स्ट इज क्यूब. नेक्स्ट इज क्यूब. Like in a cuboid, all the sides are of rectangle shape. Cube में भी 6 sides are there. Cube and cuboid. The only difference is कि in a cube, all the 6 sides are of square shape. जैसे अगर मुझे cuboid बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? This is cuboid. ठीक है, ऑल द साइड्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप. अगर मुझे क्यूब बनाना है तो क्यूब में ऑल द साइड्स आर स्क्वायर इन शेप. ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस इन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड इज द शेप ऑफ ईच साइड. क्यूबॉइड में हर एक साइड का जो शेप है वो रेक्टेंगल है. क्यूब में हर एक साइड का शेप स्क्वायर है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज डाइस. जो आप लूडो खेलते हो ना, तो लूडो में जिससे आप उसको क्या बोलते हो, छक्का बोलते हो ना, जिससे चलते हो, 1 आया 2 आया, उसके 6 साइड्स पे नंबर्स लिखे होते हैं. सो दैट इज अ क्यूब. वो आप देखोगे. आई डू नॉट हैव इट बिकॉज आई डू नॉट प्ले लूडो. मैं लूडो नहीं खेलती हूँ, तो मेरे पास तो लूडो की गोटियां भी नहीं है. आप सब बच्चे लूडो खेलते होंगे, तो आप अगर लूडो की गोटी है तो आप देखोगे कि जिससे आप खेलते हो, सबसे पहले जिसको आप उछालते हो, फिर देखते हो कि कौन सा नंबर आया, जिसको कि डाइस बोलते हैं. अगर आप डाइस देखोगे तो यू विल फाइंड दैट ऑल द 6 साइड्स आर स्क्वायर इन शेप. जैसे होता है ना डाइस पे हर साइड में 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा रहता है. 1 उसके ऑपोजिट 2 3 4 5 6 नंबर लिखा रहता है. तो उसकी जो 6 साइड्स है वो सारे स्क्वायर शेप की होती है. और इफ यू हैव सीन द रूबिक क्यूब, रूबिक क्यूब अगर किसी ने देखा हो तो उसमें जैसे 6 कलर्स की 6 साइड्स होती हैं, एंड हर एक साइड में देयर आर 9 स्क्वायर्स. जैसे एक साइड है तो उसमें, जैसे ये एक साइड है तो ऐसे करके 9 स्क्वायर्स होते हैं, एंड ऑल 9 स्क्वायर्स आर ऑफ सेम कलर. तो उसको अरेंज करके क्या करना होता है कि हर एक साइड पे एक ही कलर के स्क्वायर्स लाने होते हैं. उसका नाम ही है रूबिक क्यूब. तो उसमें भी आप देखोगे तो दैट इज ऑल्सो अ क्यूब. ऑल द 6 साइड्स आर ऑफ स्क्वायर शेप. ठीक है, तो क्यूबॉइड एंड क्यूब में द ओनली डिफरेंस इज कि क्यूबॉइड में सारी 6 साइड्स का शेप जो है रेक्टेंगल होता है, एंड इन अ क्यूब सारे 6 साइड्स का जो शेप है वो स्क्वायर होता है. ठीक है, देन थर्ड इज स्फीयर. स्फीयर मीन्स राउंड. अभी शेप तो यहाँ पे मैं ऐसे ही राउंड बनाऊंगी,
लेकिन जैसे स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल इज जैसे लेमन है, मैं देखो अभी लेमन लाना भूल गई क्लास कराने के टाइम पे। बॉल होती है, ठीक है, बॉल है, लेमन है, दैट इज एब्सोल्युटली राउंड, ठीक है ना। तो क्या है, वो पूरी तरह बिल्कुल वो राउंड होती है, तो दैट इज स्फीयर। ओके, स्फेरिकल इन शेप। जैसे बॉल आप खेलते हो तो बॉल अंदर से सॉलिड होती है, सॉलिड इन द सेंस कि उसके अंदर एयर तो होती ही है। अगर आप प्लास्टिक वाली बॉल से खेलते हो या लाइट वाली टेनिस बॉल से खेलते हो तो एटलीस्ट उसके अंदर बॉल हवा तो रहती है, एयर इज देयर। कई बार होता है ना, खेलते खेलते बॉल फट गई, उसके अंदर की एयर निकल गई, बॉल खराब हो गई, ठीक है। तो और क्रिकेट जिससे खेलते हो तो बहुत ही सॉलिड बॉल होती है। तो बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, पूरी वो राउंड होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल में कोई साइड नहीं है, सर्कल में इन अ सर्कल देयर इज नो साइड, वो पूरी एक साइड है, पूरा राउंड है। तो सिमिलरली बॉल में भी जैसे क्यूबॉइड एंड क्यूब, यू कैन से कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे हर एक साइड का एक एक पॉइंट है। मैच बॉक्स है, क्यूबॉइड है, तो 1 2 ऐसे पॉइंट्स हैं। बट इन अ स्फीयर उसका एक भी पॉइंट नहीं रहता है, वो पूरी बॉल सबके पास होगी, वो पूरी बॉल होती है। से बॉल है, लेमन है, टोमेटो है, दीज आर ऑल स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ इज सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का शेप कैसा होता है? सिलेंडर इज लाइक दिस। इसको सिलेंडर इसलिए बोलते हैं, जैसे घर में मम्मी खाना बनाती हैं तो गैस का सिलेंडर देखा है ना, सिलेंडर इज लाइक दिस। जैसे ये बॉक्स होते हैं जिसमें मम्मी घर में जैसे किचन में बॉक्सेस रखती हैं जिसमें सब राशन रखती हैं, सामान रखती हैं, सो दिस इज सिलेंडर। एक आपको ऐसे बीच में ये राउंड सरफेस ऐसे दिख रहा है, एक ऊपर है फ्लैट सरफेस, एक नीचे है फ्लैट सरफेस, सो दिस इज सिलेंडर। ओके, दिस इज सिलेंडर। एंड देन लास्ट इज कोन। फिफ्थ शेप इज कोन। कोन भी जैसे बर्थडे कैप होती है, कोन इज लाइक दिस, ठीक है। कोन इज लाइक दिस। जैसे बर्थडे कैप होती है, बर्थडे पे ऐसे करके कैप लगाते हो ना, तो वो कैप जो होती है। और व्हेन यू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो कोन होता है, या जो गाजर देखा है, गाजर है, कैरेट, रेडिश जिसको मूली कहते हैं, और यो पेंसिल, पेंसिल भी देखो आप ऊपर से, नीचे से तो प्लेन है एंड ऊपर से इसका पॉइंट है, सो ये भी क्या है, कोन शेप है। बर्थडे पे कैप लगाया, जो रेडिश होती है, गाजर सॉरी मूली, कैरेट, गाजर देखा है ना, रेडिश का शेप कैसे होता है, मूली या गाजर दोनों ऐसे ऐसे करके शेप रहता है ना, नीचे उसके रूट्स ऐसे ऐसे रहते हैं एंड ऊपर लीव्स रहती हैं, सो दिस इज कोन शेप। देन एक ओवल शेप भी हमने पढ़ा था, प्लेन शेप पे मैंने एक ओवल शेप भी बताया था। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवल शेप इज एग। जैसे एग होता है, ये देखो ये एग, दिस इज ओवल। ये क्या है, ये ओवल है ना, ये देखो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली राउंड, दिस इज ओवल शेप, सॉलिड है ये। ओवल इज प्लेन शेप इज लाइक दिस, दिस इज योर प्लेन शेप, ठीक है ना। दिस इज 2 डायमेंशनल प्लेन शेप एंड दिस इज ओवल, दिस इज सॉलिड शेप। इसका शेप भी ओवल है, ये भी ओवल है, बट दिस इज 2 डायमेंशनल शेप, दिस इज प्लेन शेप एंड दिस इज सॉलिड, ठीक है। इसको अभी मैं नीचे गिरा दूंगी तो ये फूट जाएगा, गिराऊंगी तो सारा गंदा हो जाएगा, तो ये दिस इज सॉलिड, ओके। एंड दिस इज 2 डायमेंशनल शेप, ये प्लेन शेप है, दिस इज ओवल, दिस इज सॉलिड शेप, ओके चिल्ड्रन। सो दीज आर द सॉलिड शेप्स। In my next class, if I manage to get a dice, आपको मैं dice भी दिखाऊंगी of a circle, for sphere,
बॉल तो नहीं मेरे पास, बट आई विल ब्रिंग लेमन और टोमेटो. दीज आर ऑल, लेमन भी तो बिल्कुल बॉल जैसा बिल्कुल राउंड होता है. सो दीज आर नोन एज सॉलिड शेप्स बिकॉज दे हैव लेंथ, दे हैव ब्रेड्थ एंड दे हैव हाइट. अभी ये जैसे सॉलिड है, इसको मैं वॉल पे ऐसे पेस्ट कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, बट ये एग है, दिस इज ऑल्सो ओवल. इसको मैं वॉल पे ऐसे रख पाऊंगी? नहीं रख पाऊंगी, गिर जाएगा ये. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स. सो चिल्ड्रन टुडे आई विल स्टॉप ओनली. ठीक है. जैसे हम चौक जिससे लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो सिलेंडर. सो टुडे आई विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन. In my next class we will do the exercises. Okay, so thank you children.